guys, how are you all? All my 2020 Janta, welcome back. I hope all of you are geared up and excited and super duper ready for your last round of JEE preparation. I hope सबकी preparation as far as the entire theory and syllabus is concerned almost complete हो चुकी होगी because we have got a lot of time already. In fact, अब तो हम लोग काउंटडाउन पे हैं कि हमारा एग्जामिनेशन कब होने वाला है, right guys? So I know this is a series that we have started for all of you guys to give you a last minute boost. It could be taken as a pep talk, it could be taken as the touch up which is required towards the end, right guys? तो आज का जो session है that is about the complete mechanics. I thought that why not do a session where we are looking at all the important parts of this very important unit of mechanics. Why mechanics is because mechanics has around 30 to 35% weightage of the entire JEE main examination, right guys? And a lot of you were demanding in that session where me and AP sir came together. So all of you guys were demanding for the entire revision of mechanics, being it from 11th standard and being a very important unit. So here we are for all the JEE 2020 aspirants. I want you people to show me your energy and your enthusiasm by commenting in the chat box or in the comment section that how did you like this session. Okay, so guys, starting off with the complete mechanics revision for all those students who are new on this platform. Guys, this is me, your Suri sir. I am a passer of IIT Bombay, and on this channel you all call me Mugambo. Yes, क्यों मुझे मुगैम्बो बुलाते हैं is because when you will crack this examination of JEE, मुगैम्बो खुश होगा. Yes, and you will crack this examination, I know that. Okay, so guys, there are so many awesome informations to share with you all. The most important of all that is very important for you is that already 2 sessions have gone, right? So this is the session on Saturday related to physics. Do not forget to tune back again on coming Thursday, Friday and Saturday. Okay guys, so the timing is simple, clear. 9 o'clock we are meeting and we are doing things which will give you the final lap preparation, the boost, you can say, the last minute preparation, all the tips and tricks is what we are sharing here. Okay, so guys, stay tuned, keep the reminders on, and if required, subscribe to the channel and press the bell icon so that whenever any one of us is coming live to take a session related to JEE 2020, you get the notification. Okay, so won't take much of your time because your time is very precious at this point of phase. So that's why moving on to talk about the complete mechanics recap. And when I'm saying complete mechanics recap, मैंने जब इसके बारे में सोचा तो there are so many things that we study in mechanics. It starts from kinematics, goes till fluid mechanics, right guys? तो जब हम 11th standard में इसे पढ़ते हैं तो actually around 4 to 5 months minimum हम इस पे spend कर रहे होते हैं, right? तो जब हम इसे revise करना चाहते हैं तो I have kept the objectives right, I have set the expectations from myself also right, that I want to deliver the concepts, I want to give you the important tips which are going to be helpful with respect to JEE as an examination. So there'll be n number of things which obviously are there in mechanics, but I'm going to specifically target the topics and the pointers which are going to be helpful for you guys with respect to JEE main. Okay, तो इस बात का ध्यान रखना कि you might think कि सर ने ये चीज नहीं बताई, but trust me, जो मैं बता रहा हूँ, these are the things from where the target questions are usually picked by the NTA or the body which designs the paper. Okay guys, so let's start. And the first chapter which we meet in mechanics, you know what mechanics is, why mechanics is called mechanics. I'm sure all of you are aware about that. Usually the units are divided on the basis of the energy which is working in the background. So mechanics may we have the mechanical form of energy which is working in the background. That is why the unit is called as mechanics. And here we are starting off with the very first chapter which is called as kinematics, motion in 1D. उसके बारे में बात करते हैं. Okay, तो kinematics as a very first and very foremost unit where we speak about bodies which are in motion, which may be at rest. We don't know why they are moving the way they are moving, and the only thing that we know is how they are moving, and the quantities which you deal in this chapter with are displacement, velocity, acceleration and time. These are the quantities which will define how the motion is happening.
why the motion is happening, the way it is happening is not what we discuss in this chapter, right? You are aware about that. तो इस चैप्टर को कैसे अप्रोच करना होता है, I'll first give you a bird's eye view कि कैसे इसे अप्रोच करना है, और वहीं पे एक्चुअली उसकी अप्रोच भी समझ में आती है. Whenever we are dealing with the motion in one day, let's try to understand कि how many types of motions and the questions based upon them is what you come across. So obviously you speak about uniform motion and then you speak about non-uniform motion, right? दो ही possibilities हैं. तो जब body constant velocity से move करे, I'm not concerned about the definition which is given by the textbook. I'm going to share the definitions which will make you understand what that phenomena means. Okay guys, so be clear that I'm not giving you textbook definitions here. I'm rather trying to make sense out of थिंग्स विच यू स्टडी. तो यूनिफॉर्म मोशन जो है, मतलब जब दो ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं तो ऑब्वियसली एक पॉसिबिलिटी है कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करें, राइट? और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ना मूव करें. एज सिंपल एज दैट, राइट गाइस? तो जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो सिचुएशन कुछ और होती है, जब नहीं कर रहा है तो कुछ और होती है. तो जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं करेगा तो कैन वी से दैट की वेलोसिटी चेंज हो रही है? यस, दैट मीन्स एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है. तो एक्सेलरेटेड मोशन में भी हम दो टाइप डिफाइन कर देते हैं. वन इज कॉल्ड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, जहां से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड होते हैं इस चैप्टर में, और यहाँ पे हम बोल देते हैं दैट योर एक्सेलरेशन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट. एंड दूसरा हो जाता है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड motion. Okay guys, where your even acceleration is not constant, मतलब बॉडी की वेलोसिटी का चेंज बहुत रैंडम होता है. तो इफ आई स्पीक अबाउट द इक्वेशंस ऑफ मोशन विच आर कंसर्न्ड विद यूनिफॉर्म मोशन, यहाँ सबसे बचपन वाली जो हमारी डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला आता है, ये इक्वेशन आती है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, राइट? तो यही फॉर्मूला यहाँ पे काम करता है, और ये फॉर्मूला सिर्फ यहीं पे काम करता है बिकॉज इसमें वेलोसिटी का कांस्टेंट होना जरूरी है, magnitude and direction both. Okay, but when we speak about non-uniformly accelerated motion, sorry, uniformly accelerated motion, तो यहाँ पे you know that there are three equations of motion that we deal with. One is v equal to u plus at, other is s is equal to ut plus half at square, और last होती है v square equal to u square plus 2as. Okay, और यहीं पे हम बात करते हैं displacement covered in nth second की, which is u plus a by 2 2n minus 1. ओके गाइज, सो ये जो इक्वेशंस हैं, ये इक्वेशंस आपको ऑब्वियसली स्टडी मटेरियल में मिल जाती हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि कंडीशंस क्या है जो हमें ध्यान में रखनी है. ये इक्वेशंस तभी वैलिड हैं जब क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी विच इज मूविंग इज कांस्टेंट. ओके, सो रिमेंबर, you cannot just always apply displacement equal to velocity into time. You will have to see whether the body is accelerating or not. Okay guys, और जो लास्ट केस है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, जो आपने 9th स्टैंडर्ड में नहीं सीखा था, यहाँ आके सीखा था, एंड दैट इज वेयर यू बेसिकली यूज कैलकुलस. ओके, तो यहाँ पे हम कैलकुलस का यूज करते हैं, और कैलकुलस का यूज करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें जो है यूज करनी पड़ती है इन नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, उसके बारे में बात करते हैं. तो अगर मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट जो है दैट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो आप उसे एक बार डिफरेंशिएट कर दो ds by dt, यू विल बी एबल टू फाइंड आउट वेलोसिटी, राइट? और अगर आपने एक बार और डिफरेंशिएट किया, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा. ठीक है, मतलब डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन का आप सिर्फ डिफरेंशिएशन कर सकते हो, लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट इक्वेशन होती है वो तब जब वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन हो. अगर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है और आपने उसका डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा dv by dt. लेकिन अगर आपने उसे इंटीग्रेट किया v dt, तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है. ओके गाइज, सिमिलरली इफ यू हैव एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन टू यू, तो आप उसे सिर्फ इंटीग्रेट करने पर ही कुछ यूजफुल निकाल सकते हो, और वो होता है चेंज इन वेलोसिटी. रिमेंबर, ज्यादातर लोग समझते हैं कि एक्सेलरेशन का जो इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उससे हमें वेलोसिटी मिलती है. प्लीज रिमेंबर, इट इज चेंज इन वेलोसिटी दैट यू फाइंड. Will I differentiate acceleration equation? You can mathematically, but उससे कुछ मिलने वाला नहीं है. ठीक है, let me make more sense out of it by telling you कि अगर हमें ग्राफ्स गिवन होंगे तो
what will be the output that you are going to get. और graphs बहुत बार इस chapter में बहुत ज़्यादा useful हो जाते हैं. Okay guys, तो let's speak about the graph here. तो अगर मान लीजिए graph जो है that is between displacement versus time और velocity versus time और acceleration versus time, तो उसमें हम पता लगाएंगे एक तो स्लोप क्या बताता है हमें और एरिया से हमें क्या मिलता है. मतलब इस ग्राफ का अगर मैंने स्लोप फाइंड आउट किया तो मुझे वेलोसिटी मिलती है, राइट. लेकिन अगर मैंने इसी ग्राफ का एरिया फाइंड आउट किया, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, मतलब इंटीग्रेट किया, यू कैन लुक एट इट एज इंटीग्रेशन, यू ऑल नो दैट, राइट. और स्लोप का मतलब होता है डिफरेंशिएशन. तो अगर हमने एरिया फाइंड आउट किया तो न्यूमेरिकली कर सकते हैं, बट उससे कोई क्वांटिटी नहीं मिलने वाली. और सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, जैसे कि उसकी इक्वेशन इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उसके डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों ही हमें कुछ क्वांटिटीज देते हैं. सो व्हाट इज द स्लोप? स्लोप गिव्स यू एक्सेलरेशन एंड एरिया गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट. सिमिलरली एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप जो है वो पता लगा सकते हो मैथमेटिकली, पर उसका कोई यूजफुलनेस नहीं है. लेकिन उसका अगर एरिया फाइंड आउट किया तो हमें चेंज इन वेलोसिटी मिल जाती है. तो वट एवर आई सेड हेयर इन वर्ड्स इज वॉट बिकम्स इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राफ्स. ओके, तो अकॉर्डिंगली प्लीज बस ये याद रखना कि कभी भी अगर हम काइनेमेटिकल इक्वेशंस लिखते हैं, यूज करते हैं, दे आर ओनली वैलिड फॉर वेक्टर्स. तो अगर कभी डिस्टेंस पूछा है क्वेश्चन में कैलकुलेट करने के लिए तो बी वेरी एक्स्ट्रा केयरफुल. इफ देयर इज चेंज इन डायरेक्शन, ट्राई टू फाइंड आउट द टोटल डिस्टेंस before the direction was changed and after the direction was changed, add them mathematically in addition with positive signs only. Okay, cool. So this is what usually is helpful when it comes to motion in 1D. Let's speak about the second part of kinematics where you start speaking about motion in 2D and that is projectile motion. तो projectile motion में क्या हो रहा होता है? एक बॉडी है, या तो आप उसे किसी एंगल पे थ्रो करते हो, राइट, such that you have angle theta, initial velocity u, और बॉडी मूव करके जाती है एक 2 डायमेंशनल प्लेन, लेट्स कॉल इट XY प्लेन. ओके, तो एक तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन हम स्टडी करते हैं. दूसरा प्रोजेक्टाइल मोशन होता है जब हम एक बॉडी को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं विद सम वेलोसिटी एंड द बॉडी मूव्स लाइक दिस, जिसमें टिपिकली वो एरोप्लेन ड्रॉपिंग अ बॉम्ब टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, राइट. नाउ बिफोर आई टॉक अबाउट एनीथिंग एल्स, लेट मी टेल यू कि कभी भी हम 2 डायमेंशनल मोशन को जब स्टडी करते हैं तो 2 डायमेंशन मोशन को हम 2 1 डायमेंशन मोशंस में स्प्लिट कर देते हैं. मतलब ये कि whenever I am going to talk about a 2D motion, I am going to talk about the motion of the body which is moving actually in a plane. मैं उसे स्प्लिट कर दूंगा और ऐसा सोच सकते हो कि मैं उसकी शैडो को स्टडी करूंगा ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस. जैसे कि अगर मैंने वेलोसिटी को स्प्लिट किया तो ये कंपोनेंट मुझे मिलता है u cos थीटा विच इज द x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनिशियली, एंड सिमिलरली uy मुझे मिल जाता है u sin थीटा. यू ऑल हैव डन इट सो मेनी टाइम्स, राइट. तो व्हाट इज u cos थीटा, व्हाट इज u sin थीटा? दे आर टेलिंग यू दैट इमेजिनरीली जब एक्चुअल में बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही होती है इन अ प्लेन, उसकी 2 शैडोज हैं जो आप स्टडी करते हो, वन ऑन एक्स एक्सिस, वन ऑन वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस की शैडो इज गोइंग पैरेलल और ऑन द एक्स एक्सिस, एंड वाई एक्सिस वाली शैडो पहले वाई एक्सिस पे ऊपर जाएगी और उसके बाद में नीचे आ जाएगी एज पर द फर्स्ट वन. सेकेंड वाले में भी एग्जैक्टली यही होने वाला है. किसी भी पॉइंट पे जब बॉडी यहाँ होगी तो उसकी 2 वेलोसिटीज होंगी, वन विल बी Vx, वन विल बी Vy. ठीक है, तो whenever you are trying to study it, remember because it is 2 dimensional motion, हम दोनों शैडोज का मोशन स्टडी करते हैं ऑन एक्स एक्सिस एंड ऑन वाई एक्सिस. तो एक्स एक्सिस पे हर बार ये टेबल आपको हमेशा बनाना चाहिए फॉर प्रोजेक्टाइल और 2 डायमेंशनल मोशन. तो एक्स एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा और y एक्सिस वाली शैडो की इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा हो जाती है. सिमिलरली अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो वी अज्यूम दैट दिस एवरीथिंग इज हैपनिंग इन वैक्यूम, सो देयर इज ओनली वन फोर्स एंड वन एक्सेलरेशन, दैट इज ग्रेविटी, एंड एक्टिंग अलोंग नेगेटिव y डायरेक्शन. तो ax का वैल्यू तो 0 हो गया बिकॉज देयर इज नो x डायरेक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, सो नो एक्सेलरेशन, एंड y डायरेक्शन पे -g एक्सेलरेशन होता है. ये फंडामेंटल इंफॉर्मेशन अगर आपको समझ में आती है गाइस, तो इसके बाद में प्रोजेक्टाइल मोशन का कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, इवन व्हेन यू डू नॉट नो एनी फॉर्मूला फ्रॉम दिस चैप्टर.
Trust me guys, okay? All you are doing is splitting the entire motion along x and y axis, studying its shadow, और इन्हीं दोनों शैडोज के मोशन को कंबाइन करके हम सारे फॉर्मूले डिराइव करते हैं, बी इट टाइम ऑफ लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी फॉर दैट मैटर. नाउ व्हाट यू सी हियर वेरी इंपॉर्टेंटली, इफ यू लुक एट व्हाट आई हैव रिटन हियर, एक्स एक्सिस पे जो शैडो मूव कर रही है उसका एक्सेलरेशन 0 है, तो वन डायमेंशन मोशन के अकॉर्डिंग ये यूनिफॉर्म मोशन है, राइट गाइस, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है. लेकिन अगर यही हम वाई एक्सिस पे देखते हैं तो देखो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, सो दिस इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. तो जो अभी हम स्टडी करके आ रहे हैं कि यूनिफॉर्म मोशन होगा तो एक ही इक्वेशन ऑफ मोशन है, एस इज इक्वल टू यू टी, और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन आ जाती हैं, तो अकॉर्डिंगली आप वो इक्वेशंस यूज कर लेते हो, राइट. तो आप अकॉर्डिंगली उसे लिखोगे, तो जैसे अगर मैं लिख के बताऊं आपको क्विकली वो चीज़ें, तो एक्स एक्सिस पे इक्वेशन सिर्फ एक ही लिखोगे, एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी, क्योंकि वहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन होने वाला है. बट वाई एक्सिस पे आप लिख सकते हो 3 इक्वेशन, एक तो है वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, यू वाई का वैल्यू क्या पुट करना है हमें, यू साइन थीटा, ए वाई का वैल्यू क्या पुट करना है हमें, माइनस जी. सिमिलरली वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, राइट. तो व्हाट यू सी, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं अकॉर्डिंगली जो इक्वेशंस होनी चाहिए फ्रॉम यू नो द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, मैं वो लिख रहा हूँ. एंड लास्टली यू विल हैव वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए वाई इंटू वाई. तो जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है, एज यू कैन सी दैट यहाँ पे वेलोसिटी चेंज होने वाली है वर्टिकल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो वेलोसिटी में कोई चेंज आने वाला ही नहीं है बिकॉज देयर इज नो एक्सेलरेशन. सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू कीप इन माइंड, यहाँ पे जो वी एक्स है वो हमेशा यू एक्स के बराबर ही आएगा एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, और किसी भी और जगह पे वी वाई पता लगाना है तो आप किसी भी इक्वेशन को यूज करोगे, अकॉर्डिंगली वी वाई पता लगाओगे, और नेट वेलोसिटी हो जाएगी वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर इन अंडर रूट. ओके, कूल. इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस क्विकली देख लेते हैं. टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय g. मैक्सिमम हाइट ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल जो है वो होती है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g. रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g. ओके, तो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन h और r में ही हो रहा होता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कहाँ पे स्क्वायर है, कहाँ 2 है, कहाँ डिनोमिनेटर में 2g है, कहाँ डिनोमिनेटर में बस g लिखा हुआ है. ओके, एंड लास्ट इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी वेयर वी ट्राई टू रिलेट x and y coordinate of the path. So this is trajectory equation, y equal to x tan theta minus g by 2u square cos square theta into x square. Derivations बिल्कुल अब तो ज़रूरत भी नहीं है, और आपको अगर आते भी हैं तो दे आर नॉट गोइंग टू बी वेरी मच हेल्पफुल इन दिस चैप्टर. यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं. इनफैक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन आगे के चैप्टर्स में जाके सेकेंडरी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन के रूप में भी बहुत बार मिलता है हमें. ओके, सो दिस इज व्हाट प्रोजेक्टाइल मोशन इज ऑल अबाउट. इन जनरल, a two-dimensional motion will be approached in the same way. Okay, now the last part of kinematics is what we call as relative motion. और relative motion जो है ये one of my favorite topics है. इस चैप्टर की सबसे खास बात यह है कि या तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आता है या ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है. इट इज़ दैट चैलेंजिंग एट टाइम्स. तो मैं एक बहुत छोटी सी टिप देने वाला हूँ इस चैप्टर पे, जो आप यूज़ करोगे अगर, तो आप उसके बाद में किसी भी क्वेश्चन को बिल्कुल ऐसे विद इन सेकेंड सॉल्व कर लिया करोगे. ओके, सो गाइज, हाउ टू अप्रोच इज द ओनली थिंग दैट आई विल टेल हियर. देयर इज नथिंग एल्स दैट आई नीड टू से. सो व्हेनेवर से यू हैव एन ऑब्जेक्ट और एनीबडी विच यू कैन से, इस पूरे चैप्टर में हो क्या रहा होता है, यू हैव अ मूविंग ऑब्जर्वर बेसिकली. तो मान लो ये एक ए ऑब्जेक्ट है और एक ए पर्सन है और बी सेकेंड पर्सन है. बोथ ऑफ देम आर सेम मूविंग विद देयर ओन इंडिविजुअल वेलोसिटी वी ए एंड वी बी. तो आपने बहुत कॉमनली ये पढ़ा भी है, लिखा भी है, आई डोंट नो आप समझते हो या नहीं इस बात को, बट यू राइट दैट वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाई बी और वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन बाई ए लिखते हैं. चलो, तो वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन बाई ए इज रिटन एज वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए. आई डोंट नो वेदर वी
realize what we are doing here or not. तो some of you will say कि नहीं सर मुझे पता है what is happening, ये velocity of B with respect to ground है, ये velocity of A with respect to ground है, और ये है velocity of B as with respect to A, right? तो एक बार के लिए न्यूमेरिकल वैल्यूज पुट करके देखते हैं. मान लेते हैं कि velocity of B 10 है, velocity of A 6 है. तो यहाँ पे पुट करोगे तो ये 10 है और ये 6 है, तो इसका मतलब है कि 4 से मीटर्स पर सेकेंड यूनिट है. तो यहाँ पे हमें ये समझ में आता है कि दोनों के बीच में जो वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B एज सीन बाय A इज 4 मीटर्स पर सेकेंड. पर मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ वो है अप्रोच करने का तरीका. आई नो यू मे अंडरस्टैंड व्हाट यू आर डूइंग, बट लेट मी गिव यू अ फुल प्रूफ मेथड दैट यू विल ऑलवेज बी एबल टू यूज विदाउट राइटिंग इवन दिस इक्वेशन. आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा. ठीक है, तो गाइज करना क्या है, कभी भी जब हम ये लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ B माइनस वेलोसिटी ऑफ A, तो सबसे बड़ी चीज़ जो समझने की है, व्हेनेवर यू राइट दिस, जो पहला अल्फ़ाबेट होता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए लिखा जाता है, और सेकंड वाला हम लिखते हैं फॉर ऑब्जर्वर. मीन्स व्हाट, हु इज ऑब्जर्विंग एंड हु इज बीइंग ऑब्जर्व्ड. तो ऑब्जेक्ट जो है वो तो B है और A जो है वो ऑब्जर्वर है, इट इज़ बीइंग ऑब्जर्व्ड. राइट गाइज, तो ऐसे में हमें जो भी ऑब्जर्वर है उसे रेस्ट पे लेके आना है, हमेशा ये याद रखो. ठीक है, वी वॉन्ट इट ऑन रेस्ट. हम चाहते हैं कि ये रुका हुआ रहे हमेशा. तो प्रैक्टिकली तो नहीं होगा, पर हम ऐसा इल्यूजन क्रिएट करेंगे, और वो करने के लिए जो भी उसकी वेलोसिटी है उतनी ही वेलोसिटी उसको अपोजिट डायरेक्शन में दे देंगे. तो अगर मैंने ऑलरेडी 6 वेलोसिटी थी और इस डायरेक्शन में भी उसे 6 वेलोसिटी दे दी, और आई शुड एक्चुअली नॉट राइट माइनस बिकॉज आई हैव ऑलरेडी गिवन द डायरेक्शन हियर. सो यू कैन सी दैट व्हेन आई डू दिस, व्हाट विल हैपन. Now your A has forward and backward velocity 6. So can I say that A effectively now is at rest with respect to himself. What I have done right now, I have just written velocity of A as seen by A, which will be definitely 0 because that is VA minus VA. तो मैं technicalities में mathematics नहीं डालना चाह रहा हूँ उस तरह से. I'm only trying to tell you कि let's make A to bring at rest. तो मैं उसे रेस्ट पे लेके आया by giving him a velocity backward 6. बट सिर्फ और सिर्फ आप ये वेलोसिटी उसे नहीं दोगे, यू विल हैव टू गिव दिस वेलोसिटी इन द सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन टू B ऑल्सो. तो अब जरा B पे नजर डालो. B के पास फॉरवर्ड वेलोसिटी है 10 और बैकवर्ड वेलोसिटी है 6. सो यू टेल मी पीपल, व्हाट विल यू से नाउ B हैज? B हैज इफेक्टिवली हाउ मच वेलोसिटी? फॉरवर्ड 10, backward 6. What will you say is the effective velocity of B? Can I say now the velocity that you are getting is 4 meters per second, and that is basically the velocity of B as seen by A. मतलब ये ध्यान से सुनना, A अगर अपने आप को ऑब्जर्व करे और अपने आसपास की हर चीज को ऑब्जर्व करे, तो पहली चीज तो वो खुद के रिस्पेक्ट में हमेशा एट रेस्ट रहेगा. लेकिन वो जिन भी चीजों को ऑब्जर्व कर रहा होगा, अब वो सब उतनी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन से मूव नहीं करेंगे जितना वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कर रहे थे. तो अब जो आपको वेलोसिटी दिख रही है, इस क्वेश्चन को अब आप बिल्कुल नॉर्मली काइनेमेटिक्स की तरह सॉल्व कर दो. मान लो अगर इन दोनों के बीच में गैप 40 मीटर्स था, दैट इज रिलेटिव गैप. तो अब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, नाउ द क्वेश्चन कैन बी सीन एज एन ऑब्जर्वर हु इज एट रेस्ट. ए एक ऐसा ऑब्जर्वर है जो रेस्ट पे है और B A की तरफ आ रहा है. तो कितना टाइम लगेगा उसे पहुंचने में? यू विल सिंपली से इट इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी. But what is displacement? Displacement of B relative to A, velocity of B relative to A, that you are inherently doing now without even worrying about it. तो displacement relatively 40 है और relative velocity भी 4 हो गई है, तो 10 सेकेंड लगेंगे ओवरटेक या पास में आने के लिए. ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ऑब्वियसली अलग टाइम, अलग अलग डिस्प्लेसमेंट्स कवर होने वाले हैं. यू कैन सी दैट अगर 10 सेकेंड ट्रैवल करेंगे तो ये 60 मीटर कवर कर लेगा, ये 100 मीटर कवर कर लेगा, बट रिलेटिवली दोनों के बीच का जो गैप है वो 40 मीटर है, कवर हो जाएगा. ओके गाइस, सो रिमेंबर व्हेनेवर यू आर अप्रोचिंग, मेक योर ऑब्जर्वर एट रेस्ट. एंड ये चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी ये लिखते हो तो पहला अल्फाबेट ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर को रेस्ट पे लेके आना है. Okay guys, so I hope you understood this part. Okay, and this is where the key for relative motion is held. Okay guys, so this was kinematics, where we have spoken about the things which were studied without knowing the cause of motion. तो हमें पता नहीं था कि ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है वो क्यों मूव कर रहा है, the way it is moving, right?
सो वाई द ऑब्जेक्ट इज मूविंग द वे इट इज मूविंग, ये चीज़ हम स्टार्ट करते हैं इन द डिस्कशन ऑफ लॉज ऑफ मोशन. वी ऑल्सो से कि यहाँ से डायनमिक्स स्टार्ट करते हैं हम लोग. दिस इज द पार्ट ऑफ mechanics which we call as dynamics, and the first thing that you study here are the laws of motion, one of the most fundamental, one of the most important laws of physics here. Okay, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं. Obviously सबसे ज़्यादा important है the name of the chapter itself, the laws of the laws of motion, the three laws. I'm sure you all have by hearted them, but it's important कि आप उन्हें in terms of their understanding clear रखें. Okay, you know that first law speaks about the situation till your F external is 0. सिंपल सी बात है, अगर एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो दो पॉसिबिलिटी हैं. अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है सो इट विल रिमेन एट रेस्ट, मतलब उसकी वेलोसिटी जो है वो 0 ही रहेगी. ओके, और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि अगर वो ऑलरेडी मूव कर रहा था या कर चुका था और फिर फोर्स 0 हो गया तो उसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी. ओके, विल नॉट रिमेन 0 ऑलवेज बट विल बिकम कांस्टेंट. ओके, दैट इज व्हाई द स्टेटमेंट सेज दैट whenever a body is at rest it will remain at rest. If a body is in motion it will continue to move with that velocity until unless a non-zero unbalanced external force is applied. तो पहला लॉ बहुत सिंपली ये बताता है कि अगर फोर्स नहीं लगेगा तो क्या होगा. प्लीज डोंट जस्ट कीप द फर्स्ट पॉइंट इन माइंड कि बॉडी रेस्ट पे रहेगी. अगर बॉडी मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती रहेगी. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ व्हाट इफ F external which is acting on the body is non-zero? So we say that in that case F external will be able to change the velocity and effectively it will be able to change the momentum. Okay, so this is what the second law of motion is. और यहीं से हमें मिलता है m into a जब हम मास को कांस्टेंट अज्यूम कर लेते हैं और वेलोसिटी को चेंज करते हैं. तो बहुत सिंपल सा तरीका याद रखने का कि जब फोर्स 0 है तो क्या और फोर्स 0 नहीं है तो क्या होगा. बहुत ज़्यादा काम आने वाला एक्सप्रेशन और लॉज हैं ये. और थर्ड जो कि एक्शन रिएक्शन लॉ कहलाता है, सबसे ज़्यादा नेग्लेक्टेड लॉ है ये. यस, why do I say action reaction is the most neglected law is because we feel that in a situation whenever there are two forces which are acting in opposite direction and have equal magnitude, हम मान लेते हैं कि दोनों एक्शन रिएक्शन है. जैसे कि अगर एक ऑब्जेक्ट है जो कि ग्राउंड पे रखा हुआ है तो उस पर हम बोलते हैं कि ग्रेविटी लग रही होगी mg डाउनवर्ड और बोल देते हैं नॉर्मल फोर्स अपवर्ड लग रहा होगा. राइट, तो वी सिंपली कंक्लूड दैट n इज इक्वल टू mg एंड देन वी थिंक कि हाँ दोनों के डायग्राम में डायरेक्शन भी अपोजिट है और मैग्नीट्यूड भी सेम है. सो यू स्टार्ट अज्यूमिंग दैट दे आर एक्शन रिएक्शन पेयर्स, बट प्रैक्टिकली दे आर नॉट. वाई दे आर नॉट? वही पार्ट है जो सबसे ज़्यादा नेग्लेक्टेड होता है एक्शन रिएक्शन लॉ में, और वो ये दैट एक्शन रिएक्शन पेयर विल नेवर एक्ट ऑन द सेम बॉडी. मतलब ये जो दो फोर्सेस हैं ये कभी भी एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं लगते, जबकि इस एग्जांपल में दोनों फोर्सेस ब्लॉक पे लग रहे हैं. तो गाइज रिमेंबर, अगर हम कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाले किसी एक फोर्स को देखते हैं तो उस फोर्स को वो अगर बॉडी एक्सपीरियंस कर रही है तो दूसरी बॉडी जिसने ये फोर्स इस बॉडी पे लगाया है उसे एक्सपीरियंस करना होता है. बहुत सिंपल सा एग्जांपल, if your body is experiencing Earth's gravitational field and the force is mg, then the reaction force is being felt by the Earth has the same magnitude mg. Yes guys, जितना फोर्स अर्थ आपके ऊपर लगाती है उतना ही फोर्स आपकी बॉडी भी अर्थ पे लगा रही होती है. सिमिलरली अगर इस एग्जांपल में नॉर्मल फोर्स टेबल ने लगाया इस बॉडी के ऊपर तो जो रिएक्शन फोर्स है वो टेबल को एक्सपीरियंस होगा. प्लीज रिमेंबर दिस, वेरी इंपॉर्टेंट इट इज टू रिमेंबर. ओके, कूल. नाउ हाउ डू यू अप्रोच क्वेश्चंस इन लॉज ऑफ मोशन? बहुत ही बेसिक सा अप्रोच हमेशा काम आता है लॉज ऑफ मोशन में, and that is to draw the free body diagram. So whenever you are drawing free body diagram of any object, there are certain things that you should take in mind, take in account. First of all, you should be able to see that body separately out of that system. Means what? अगर वो body के आसपास बहुत सारे objects हैं, you should be able to separate that body out, visualize it, and be able to write the following things which I am going to tell you now. तो अगर मान लो इसी बॉडी की बात कर रहे हैं
इस बॉडी पे मान लो एक फोर्स mg नीचे लग रहा था, एक फोर्स नॉर्मल ऊपर लग रहा था, तो अब मैं ग्राउंड को कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, टेबल को कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कंसिडर कर रहा हूँ इस ब्लॉक को। तो ब्लॉक को मैंने सबसे पहले सेपरेट आउट किया, उस पर लगने वाले फोर्सेज अगर हमने देखे तो वो लगा दिए हमने, डायरेक्शन वाइज लगा दिए, एंड आफ्टर दैट यू विल हैव टू डिफाइन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम विच इज सूटेबल इनफ, राइट। तो अगर मान लो ये y और ये x एक्सिस है, तो अकॉर्डिंगली you have defined a suitable coordinate system so that your maximum number of forces are lying on the coordinate axis. After that, all you have to do is, if the body is at rest, you will say that the net force acting on the body is equal to 0, and if the body is not at rest, then you will say that F net on the body is equal to its mass into acceleration. As simple as that. एक और बहुत बेसिक सा एक एग्जाम्पल यहाँ पे अप्रोच बता देता हूँ। Say if you have an inclined plane on which there is a body, तो इस बॉडी पे अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम इसका स्टडी करते हैं तो ये ही दो फोर्सेस मैं बता देता हूँ लग रहे हैं। इनफैक्ट चलो फ्रिक्शन भी कंसिडर कर लेते हैं, राइट। तो हमें क्या करना होता है यहाँ पे, क्योंकि बॉडी स्टेशनरी अगर नहीं है, नीचे आने वाली है, तो हमेशा याद रखना वन ऑफ द एक्सिस दैट यू डिफाइन, कोऑर्डिनेट एक्सिस, has to be along the direction of acceleration. तो इसके according you will see that according to this diagram, normal force is acting along y axis, friction is acting along x axis, but your mg is acting somewhere in xy plane. तो तुम mg को resolve कर देते हो. What you basically do, you say that this angle is going to be theta, so this becomes mg cos theta and this becomes mg sin theta. और अब ये देखते हैं कि किस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है। बॉडी इज गोइंग अलोंग एक्स डायरेक्शन। तो व्हेन यू ट्राई टू राइट द फोर्सेस हियर, यू से दैट अलोंग एक्स डायरेक्शन व्हाट इज हैपनिंग, द बॉडी इज एक्सेलरेटिंग. सो व्हाट इज द फोर्स व्हिच इज ड्राइविंग इट? द बॉडी इज बीइंग ड्रिवन बाय mg sin theta and is being opposed by friction, and this should be equal to mass into acceleration. As I said, net force must be equal to mass into acceleration if the body is accelerating. बट अगर मैं y डायरेक्शन की बात करूं, ये वाला जो डायरेक्शन है, यहाँ पे तुम देख सकते हो कि जो नॉर्मल फोर्स है दैट इज बैलेंसिंग mg cos theta. So the net force acting along y direction is 0. So accordingly आप हर बार फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ और ये अप्रोच लगाते रहो. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है F इक्वल टू ma को आइडेंटिफाई कर पाना. ओके, इनफैक्ट ये अप्रोच फ्रिक्शन में भी काम आएगी और ये अप्रोच लॉज ऑफ सर्कुलर मोशन में भी काम आएगी, राइट. सर्कुलर मोशन में सिर्फ एक चीज़ हम याद रखते हैं कि वहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो जाता है, विच इज़ नथिंग बट m इंटू वी स्क्वायर बाय आर. तो वी स्क्वायर बाय आर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, और अगर टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है, अगर लग रहा है, तो वो मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विच इज़ नथिंग बट dv by dt into m. Okay, so please remember that whatever you study in laws of motion helps you in friction, helps you in circular motion also. Cool. Now when we speak about the next chapter, work, energy and power, so work, energy, power is the second most fundamental chapter of mechanics after laws of motion. और यहाँ पे as the name suggests, it is more about work and energy, very less about power in terms of calculations and problem solving. तो सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता है यहाँ पे समझने की चीज़ है वो ये, एक तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए अबाउट कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस. ओके, रिमेंबर दैट जितने भी फोर्सेस फील्ड फोर्सेस होते हैं, ऑल द फोर्सेस विच आर फील्ड फोर्सेस, they are basically conservative in nature, and the other forces are basically your non-conservative forces like friction, air resistance and muscular forces. Okay, so the actual idea or actual reason why the importance of these forces are so much is because of the work energy theorem. So we say that first of all, for conservative forces, the work done by them is always equal to the negative of the change in potential energy. यस गाइस, तो ये जनरली हम प्रूव भी कर सकते हैं बाय थ्रोइंग एन बॉडी अपवर्ड. जब बॉडी ऊपर जा रही होती है ऑन द वेरी क्लोज टू अर्थ सरफेस, तो किसी भी बॉडी को जब हम ऊपर थ्रो करते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है mgh. लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा होता है, तो अगर हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं तो वो आता है -mgh, विच
kind of proves that work done by conservative force is negative of the change in potential energy. Okay guys, now when we try to write down the work energy theorem says that work done by conservative force, work done by your non-conservative force and work done by your external force, all the forces put together, whether they are present, they are not present, the work done by all of them will be equal to the change in kinetic energy. Yes, मतलब अगर आप इसकी बेसिक थॉट को गहराई से समझने की कोशिश करो तो यू विल रियलाइज दैट फोर्स का जो बेसिक नेचर है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्राइव करने का है. Every force in this universe, whenever acts on an object, it wants that body to speed up, it wants that body to gain kinetic energy, right? So whichever forces will act on a body, they will for themselves will try to speed up a body. Now whether they are able to dominate, if they are able to, then they will able to speed up, otherwise they will not be, they will rather try to oppose that force which is trying to do so. But as you know that your conservative forces are the only one which can change the potential energy, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं बात करता हूँ कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो है, हम इस पार्ट को लिख सकते हैं as by taking this work done by conservative force on the right hand side as this, right? And what is this? Work done by conservative force is negative of the change in potential energy, so this comes out to be nothing but change in kinetic energy plus change in potential energy. Minus sign is already taking care of that. Change in kinetic plus change in potential energy is nothing but change in the total mechanical energy. Means what guys? Whenever the mechanical energy of the system is going to change, when I say mechanical, kinetic plus potential value, that will only happen when your conservative forces, your non-conservative forces or external forces are working. In other words, your conservative forces are known to be the forces which will never try to change the overall energy of the system. मतलब ये, they will only try to change kinetic to potential, potential to kinetic, but the sum of kinetic plus potential will always remain constant. That's what we say is the job of your conservative force. So please remember, this is how you apply your work energy theorem. I personally am a little reluctant on using this work energy theorem. इसीलिए मैं आपको एक approach बताता हूँ which I always prefer whenever I am solving questions in work energy and power. और इस बहाने से मैं आपको वर्टिकल सर्कुलर मोशन का भी एक जिस्ट दे सकता हूँ. तो व्हेन वी स्टडी वर्टिकल सर्कुलर मोशन, यहाँ पे हम वर्क एनर्जी थ्योरम से भी उस एक्सप्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं जो हम वहाँ करते हैं, द मिनिमम वेलोसिटी दैट इज रिक्वायर्ड एट द टॉप मोस्ट एंड द बॉटम मोस्ट पॉइंट. तो अगर ए और सी वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे हमें मिनिमम वेलोसिटीज़ की वैल्यू चाहिए, वी ए और वी सी, बाय विच दे विल बी एबल टू कंप्लीट द सर्कल, तो एक अप्रोच होती है जो वर्क एनर्जी थ्योरम से जाती है. पर व्हाट आई पर्सनली प्रेफर इज टू सी वेदर देर आर कंजर्वेटिव फोर्सेज वर्किंग और देर आर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज वर्किंग. सो व्हेन वी स्टडी दिस, हम देखते हैं कि ये जो सिचुएशन है इसमें हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज को एब्सेंट मानते हैं, मतलब देर इज नो फ्रिक्शन, देर इज नो एयर रेजिस्टेंस. सो व्हाट आई से, if there are no non-conservative forces acting, so the mechanical energy of the system will remain conserved. मतलब energy at A should be equal to energy at C. That's what we are going to use. So first of all, when I look at C as the point, at C, if you already have found the value of the velocity under root rg, which you get by applying the minimum force which is required to move in the circular path, that is mg, you equate it to mv square by r. m से m कैंसिल हो जाता है, v का वैल्यू आ जाता है अंडर रूट ऑफ rg, r को कैपिटल ले लेता हूँ, राइट. तो ये सिंपल सा तरीका होता है. लेकिन जहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वर्क एनर्जी थ्योरम को कैसे यूज़ करते हैं, उसके लिए मैं सिंपली एक ही बात बोल रहा हूँ, दैट आई एम गोइंग टू यूज़ द सेकेंड मोस्ट फंडामेंटल लॉ ऑफ दिस यूनिवर्स called as law of conservation of energy. I should actually say it is the most fundamental law of this universe, right? Before laws of motion. According to the sequence, laws of motion हमने पहले पढ़ लिए हैं. अब law of conservation of energy में apply करने जा रहा हूँ. That energy at point A and energy at point C should be same, and I have considered this point as h equal to 0, और C का जो height है वो you can see is 2r. तो at A there is no potential energy, only kinetic energy, half mva square.
and at C there will be some kinetic energy and there will be potential energy as m into g into 2r. तो m थ्रू आउट कैंसिल हो जाता है, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. I hope you guys are looking at the approach that I'm using, right? It's not about derivation here, it's about applying the law of conservation of energy properly here. Vc स्क्वायर का वैल्यू हमें पहले से पता हो गया तो हम उसे अप्लाई कर पा रहे हैं. सो दिस इज अंडर रूट आर जी प्लस 4rg दैट वी आर गोइंग टू गेट एज Va, राइट. तो Va का वैल्यू एज यू ऑलरेडी बाय हार्टेड लॉन्ग टाइम बैक comes out to be under root of 5rg, the minimum value of velocity at A. So what I actually wanted your focus on, मैं जो चाहता था आप किस चीज़ पे ध्यान दें, is what I am trying to see that there is no non-conservative force working, only conservative force gravity and maybe tension force is working. So system की mechanical energy conserve रहेगी. So that's what I am writing here. Kinetic potential का sum constant है. So keep on applying this. You may not require to use work energy theorem, which is sometimes confusing. Okay, cool. Now let's speak about center of mass and collision, the next chapter. तो how to approach center of mass problems. तो इसमें दो अलग अलग तरह के problems मिलते हैं. एक होते हैं जहाँ पे you have discrete masses, जहाँ पे बाउंड्रीज अलग अलग हैं, लोकेशंस अलग अलग हैं. तो वहाँ तो आप लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पता लगा लेते हो बाय यूजिंग m1r1 plus m2r2 divided by m1 plus m2, right? This is something that you already know, which is basically the mass moment being equated and found. इसी को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी मिलती है, m1 v1 plus m2 v2 divided by m1 plus m2, right guys? Now what is important sometimes, ये तो एक लोकेशन और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बेस्ड क्वेश्चंस बहुत इजीली आप सॉल्व कर पाते हो. सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस मैंने देखे हैं जिन पे टारगेट होता है इन डिफरेंट एग्जाम्स इज़ द केस व्हेन यू हैव नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम. यस, मतलब इंटरनल फोर्सेस की वजह से बॉडीज मूव कर रही हों. सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है रिकॉइलिंग ऑफ द गन. तो ऐसे में एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 हो जाता है और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है वो कांस्टेंट हो जाती है. Now by this I want you people to understand constant रहती है, constant velocity of center of mass. It is not always going to be 0. Center of mass हो सकता है move कर रहा हो, बिल्कुल वही चीज़ जो काइनेमेटिक्स में बोली थी, right? In fact first law of motion में भी यही बात मैंने बोली. Okay, so guys ऐसा होने पर if I equate this part to be 0, remember m1 v1 plus m2 v2 will be constant, and this is nothing but the overall momentum of the system. Means what? You are basically writing third and the most important third law called as law of conservation of momentum. इस पे बेस बहुत क्वेश्चंस होते हैं. सिर्फ ये समझना होता है कि मोमेंटम किस डायरेक्शन में कंजर्व हो रहा है. ओवरऑल हो सकता है कि एक्सटर्नल फोर्स लग रहा हो, ग्रेविटी लग रही हो, पर अगर एक्स डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है तो उस डायरेक्शन में कोई फोर्स अगर नहीं लगेगा एक्सटर्नली तो मोमेंटम उस डायरेक्शन में भी कंजर्व किया जा सकता है. ओके, तो एक तो ये प्रॉब्लम्स होते हैं यहाँ पे सॉल्व करने के लिए. एक बहुत टिपिकल सा एक प्रॉब्लम होता है जिसमें कोई एक ऑब्जेक्ट है और उसमें से हमने कैविटी क्रिएट कर ली है, राइट गाइस? आई एम नॉट सेइंग दैट यू गाइस हैव नॉट सीन दिस, आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू रिवाइज ऑल दीज थिंग्स. तो अगर मान लो ये जो रेडियस है दिस इज r/2 और हमारा जो डिस्क दिया हुआ है उसका रेडियस r है, तो क्वेश्चन पूछता है कि पता लगाओ कि लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग डिस्क क्या होगी. तो ऐसे में एक अप्रोच तो बोलती है कि m1r1 माइनस m2r2 अपॉन m1 प्लस m2 टाइप ऐसा सॉल्व कर दो. बट मैं एक तरीका बताता हूँ कि मान लो अगर मैं ये कैविटी वाला मास वापस से रख दूँ, मान लो कैविटी वाला जो मास था दैट वाज m1 और ये बचा हुआ जो मास है दैट इज m2. सो वी आर सेइंग दैट द एंटायर मास ऑफ द सिस्टम इज नथिंग बट m1 प्लस m2. So this is 0,0 coordinate where capital M mass was originally placed. जब पूरी डिस्क थी तो सेंटर पूरा वहीं पे रखा हुआ था, सेंटर ऑफ मास वहीं पे था, राइट गाइस? अब जो है अगर मैं थ्योरेटिकली कैविटी को फिर से फिल कर दूं तो सेंटर ऑफ मास कैपिटल M पे शिफ्ट हो जाना चाहिए, यानी कि 0,0 पे आ जाना चाहिए. तो व्हाट इज लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास? इट इज m1 r/2. ऑब्वियसली आपको मास m1 m2 पता लगाना पड़ता है यूजिंग द यूनिफॉर्म डेंसिटी. दूसरा जो है वो है m2 और माइनस x2,
तो यहाँ प्लस लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये वैल्यू जो है इसे 0 से इक्वेट कर दो। मैंने क्या किया, वापस से कैविटी को फिल किया थ्योरेटिकली। तो आप जब सॉल्व करते हो तो m2 x2 का वैल्यू m1 इंटू r/2 के बराबर आ जाएगा, और आपको ऑलरेडी m2 का वैल्यू पता होता है, आप सिंपली x2 निकाल लेते हो एज m1 बाई m2 इंटू r/2। ये r/2 ना होके किसी और क्वेश्चन में कुछ और भी वैल्यू हो सकती है। सिंपली यू शुड नो दिस वैल्यू ऑफ x1। आर यू गेटिंग इट? व्हाट वी आर यूजिंग इज m1 x1 इक्वल टू m2 x2 अबाउट सेंटर ऑफ मास। ठीक है, बहुत ही टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं, और आप ऐसे इसे सोल्व कर सकते हो बहुत ही इजीली विदाउट एक्चुअली वरिंग अबाउट द फॉर्मूला टू रिमेंबर एनीथिंग। ओके, कूल। नाउ कम्स योर कोलिजन प्रॉब्लम्स। देखो यार, कोलिजन में हमेशा एक बात का ध्यान रखना, चाहे वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हो, या पार्शियली इलास्टिक कोलिजन हो, हम कोलिजन स्टडी करते हैं एज एन एग्जांपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। रिमेंबर दैट। मतलब ये कि कोलिजन से पहले जो सिस्टम का मोमेंटम है और कोलिजन के बाद जो सिस्टम का मोमेंटम है वो हमेशा सेम होगा, चाहे फिर वो इलास्टिक कोलिजन हो, चाहे फिर वो इनइलास्टिक कोलिजन हो, या फिर वो पार्टली इलास्टिक हो। तो रिमेंबर दैट। ओके, इट इज ओनली इलास्टिक कोलिजन जहां काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑल्सो रिमेन्स कंजर्व्ड। ओके, तो हमें बस किन चीज़ों का ध्यान में रखना होता है while solving any question in general is first of all m1 u1 plus m2 u2, the initial momentum of the two bodies together should be equal to m1 v1 plus m2 v2। और मैं इसे वेक्टोरियली लिख देता हूँ ताकि अगर टू डायमेंशनल कोलिजन है तो आप अकॉर्डिंगली आई कैप जे कैप का ध्यान भी रखोगे। ओके, अकॉर्डिंगली वेक्टर्स v1 और v2 को वैसा लिखोगे, u1 और u2 को भी। ओके, तो एक तो ये हमेशा वैलिड है। दूसरी चीज है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। यू नो दैट व्हेनेवर ऑब्जेक्ट्स कोलाइड, द कोलिजन पीरियड व्हेन इट स्टार्ट्स टिल द टाइम मैक्सिमम कंप्रेशन और मैक्सिमम डिफॉर्मेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट हैपेंस, दैट पीरियड इज कॉल्ड एज डिफॉर्मेशन पीरियड। और उसके बाद जब ऑब्जेक्ट्स वापस से अलग होना शुरू होते हैं, रीफॉर्म करने लगते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल एज द रेस्टिट्यूशन पीरियड। So in restitution period we define a coefficient of restitution which is defined as velocity of separation to the velocity of approach, or simple words में it is v2 minus v1 divided by u1 minus u2। तो पहले u1 is greater than u2 obviously जब दो bodies मूव कर रही हैं collision से पहले, और बाद में v2 greater than v1 हो जाता है depending upon their directions। तो trust me guys, इन दो के अलावा आप किसी भी और आपको इक्वेशन की ज़रूरत नहीं है इन ऑर्डर टू सॉल्व एनी क्वेश्चन फॉर कोलिजन्स। येस गाइस, आई एम टेलिंग यू दैट वेरी ऑनेस्टली। आपको अगर 1D के क्वेश्चंस हैं तो वेक्टर फॉर्म में भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली प्लस माइनस से काम चल जाता है। फॉर इलास्टिक कोलिजन द वैल्यू ऑफ E इज़ 1, फॉर इन इलास्टिक कोलिजन टू ऑब्जेक्ट स्टिक टुगेदर दिस v2 minus v1 becomes 0, and for partially elastic the value of E is somewhere between 0 and 1। बस इस बात का ध्यान रखना होता है। ठीक है guys, awesome। Now coming to rotational motion, the legendary chapter of JEE preparation, जहाँ पे इससे पहले जो भी हमने डिस्कस किया होता है वो सब रिविजिट हो जाता है, सब कुछ रीचेक हो जाता है, रीटेस्ट हो जाता है। इसीलिए रोटेशन मोशन इतना फेवरेट चैप्टर होता है, बिकॉज दे कैन आस्क यू अ सिंगल और 2 क्वेश्चंस एंड दे कैन टेस्ट योर एंटायर नॉलेज ऑफ मैकेनिक्स। यस, तो यहाँ पे ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा एक जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन हमेशा मिलते हैं, दोज आर बेस्ड अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शियाज। तो ऑब्वियसली आई वॉन्ट यू पीपल टू रिमेंबर कि रिंग या हॉलो सिलेंडर का यूजुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रहे, जो कि mr² होता है। फॉर डिस्क और यू कैन से सॉलिड सिलेंडर, यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr² होता है। इफ़ वी स्पीक अबाउट से अ रॉड के सेंटर से अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रही है तो 1/12 ml² होता है। ओके, और अगर उसके एंड से पास हो रही है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/3 ml² होता है। इफ़ आई स्पीक अबाउट हॉलो स्फेयर तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/3 mr²।
और अगर सॉलिड स्फेयर है तो डायमीटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट 2/5 mr² होता है. ओके गाइज. उसके अलावा इफ़ आई स्पीक अबाउट रेक्टेंगुलर प्लेट और उससे परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो ये होता है 1/12 ml² प्लस b². इसी को अगर स्क्वायर प्लेट बना दिया तो l और b इक्वल हो जाएंगे एंड 1/6 ml² आ जाएगा. ठीक है गाइज. आई होप यू आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट दीज मोमेंट ऑफ इनर्शियाज. But what is even more important at times is to remember the perpendicular axis theorem and its application. So whenever you have an object which is 1D or 2D, not valid for 3D objects, has different axes of rotation, out of which you have two axes which are lying in the plane of the body. दो axes body के plane में ही lie करते हैं. तो ऐसे में बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू अबाउट z एक्सिस जो आती है वो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया x और y के अबाउट अगर पता है, उन दोनों को ऐड करने पर जो वैल्यू मिलेगी वही होती है. ठीक है. उसके अलावा इफ़ यू हैव अ बॉडी फॉर विच इफ़ यू नो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, अगर आपको सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो अगर पैरेलली हम d डिस्टेंस से एक्सिस ऑफ रोटेशन को शिफ्ट कर दें तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है, दिस इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम, वो आता है ICM प्लस md². ओके. सो रिमेंबर, सेंटर ऑफ मास के अबाउट पास होने वाली एक्सिस होनी चाहिए, फिर चाहे वो बॉडी के प्लेन में हो, बॉडी से परपेंडिकुलर हो, कैसे भी हो, इट इज वैलिड फॉर एनी टाइप ऑफ बॉडीज. ओके. कूल. Now, important is to remember the correlation between the rotational and translational quantities. जो translation motion में displacement होता है वो यहाँ पे angular displacement बन जाता है. जो वहाँ पे linear velocity का job है वो यहाँ पे angular velocity बन जाती है. जो वहाँ पे linear acceleration होता है, जिसे आप circular motion में tangential acceleration भी बोल सकते हो, वो यहाँ पे angular acceleration का रोल होगा. ठीक है. उसके अलावा जो रोल वहाँ मास प्ले करता है वो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले कर रहा होता है. एंड नाउ इवन मोर इम्पॉर्टेंट, जो रोल वहाँ फोर्स का होता है टू बिकम द कॉज ऑफ मोशन, वो यहाँ टॉर्क का होता है. जो रोल वहाँ पे लीनियर मोमेंटम प्ले करता है ट्रांसलेशन मोशन में, वो यहाँ एंगुलर मोमेंटम का रोल होता है. और जो रोल वहाँ पे नॉर्मली काइनेटिक एनर्जी का होता है वो यहाँ पे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्ले कर रही होती है. ओके. उसके अलावा बिफोर आई गो फॉरवर्ड, द रिलेशन बिटवीन v एंड ओमेगा इज दिस, v इक्वल टू ओमेगा आर. ओके. उसके अलावा at इज इक्वल टू अल्फा आर. ये आपस में रिलेशंस होते हैं. ओके. इसके अलावा इफ वी लुक एट टॉर्क, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा. ओके. एंड वी नो दैट टॉर्क इज कैलकुलेटेड एज r क्रॉस f, RF sin थीटा. राइट. सिमिलरली एंगुलर मोमेंटम जो है वो I इंटू ओमेगा है फॉर अ रिजिड बॉडी एंड सीन एज R क्रॉस P. फॉर सर्कुलर मोशन इट इज mvr. एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो बिल्कुल हाफ mv² की तरह यहाँ पे हाफ I ओमेगा² बन जाती है. ओके. सो आई होप यू गाइज आर अवेयर अबाउट दिस. I'll not waste much of time in this type of situations because बहुत ज़्यादा questions इस पे बेस्ड नहीं होते हैं. सबसे ज़्यादा questions बेस्ड होते हैं रोलिंग मोशन के ऊपर. मैं उस बारे में ज़रूर आपको एक बात बताना चाहता हूँ. तो जब कभी भी हम रोलिंग मोशन को स्टडी करते हैं गाइस, तो रोलिंग मोशन स्टडी करने का सबसे इम्पॉर्टेंट जो रीज़न है वो ये कि रोलिंग जो है बेसिकली वो ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन है. मतलब अगर आपकी एक बॉडी ट्रांसलेट करेगी तो कैसे मूव करती है. ट्रांसलेशन का मतलब होता है जब पूरी बॉडी का हर एक पार्टिकल सेम वेलोसिटी से मूव करे. और एक है प्योर रोटेशन, जब बॉडी के पार्टिकल्स जो हैं वो सेम एंगुलर वेलोसिटी या सेम एंगुलर एक्सेलरेशन से मूव करें. तो अगर मैं इन दोनों मोशंस को ओवरलैप करवा देता हूँ तो लुक एट व्हाट हैपन्स. सेंटर का पार्टिकल अभी भी v वेलोसिटी से मूव करता रहेगा. टॉप वाला पार्टिकल जो है उससे दोनों वेलोसिटीज़ अब ऐड हो जाएंगी, ये वाली और ये वाली. तो अगर दोनों की वैल्यू v है तो ये 2v हो जाती है. जो सेंटर से बॉटम पे जो पार्टिकल है, अगर v फॉरवर्ड और v बैकवर्ड मिलती है उसे ट्रांसलेशन और रोटेशन से, तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है.
ये वाला जो पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी देखो, ट्रांसलेशन से तो v है और रोटेशन से आने वाली v वेलोसिटी है टेंजेंशियल। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, अगर ये p पार्टिकल है तो ये vp वेलोसिटी। सिमिलरली हर एक पार्टिकल को आप चेक कर सकते हो ट्रांसलेशन और रोटेशन वेलोसिटी के बेसिस पे। ऑल आई वांट टू टेल यू इज whenever there is any particle, say it is randomly placed at this position, तो इसको ट्रांसलेशन से एक वेलोसिटी मिलेगी और रोटेशन से एक वेलोसिटी मिलेगी, लीनियर वेलोसिटी, यस। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो आपको पता लगाना होता है, दैट बेसिकली इज द वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल, एंड नाउ दैट लोकेशन विल टेल यू दैट व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज टू, यू कैन कॉल इट थीटा। ओके गाइस, नाउ दिस इज वन थिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग रोलिंग। एक टिपिकल सिचुएशन समझाता हूँ कि मान लीजिए यू हैव अ बॉडी विच इज moving or rather trying to come down a rough inclined plane, okay? और उसे नीचे जब आना है तो कभी भी रोलिंग मोशन को स्टडी करना है तो एज आई सेड इट इज इफेक्ट ऑफ ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन कंबाइंड। तो इस बॉडी पे जितने भी फोर्सेस लग रहे होंगे, एक होगा mg साइन थीटा, एक होगा mg कॉस थीटा, फोर्सेस चेंज नहीं होंगे, जो लॉज ऑफ मोशन में आपने पढ़े हैं वही फोर्सेस होंगे। आप देख सकते हो कि जिस पॉइंट के अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है, ये जो तीन फोर्सेस दिख रहे हैं आपको, एक्चुअली mg और m ही हैं, ये दोनों एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही पास हो रहे हैं, तो टॉर्क नहीं लगा सकते। फिर भी बॉडी को टॉर्क एक्सपीरियंस होगा, एंड दैट टॉर्क विल बी अप्लाइड बाय योर स्टैटिक फ्रिक्शन इन द केस ऑफ प्योर रोलिंग, राइट। तो यहाँ पे ये फ्रिक्शन की वजह से जो टॉर्क है वो हम लिखेंगे। कभी भी रोलिंग मोशन की इक्वेशंस अगर लिखनी है तो रिमेंबर, एक इक्वेशन होगी F इक्वल टू ma और एक इक्वेशन होगी टॉ इक्वल टू आई अल्फा। तो अगर आप F इक्वल टू ma लिखोगे, एंड येस ऑब्वियसली A विल बी इक्वल टू अल्फा आर, दिस विल बी वैलिड फॉर प्योर रोलिंग। तो लीनियर इक्वेशन आप लिख दोगे mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू ma, और दूसरी इक्वेशन आप टॉर्क के लिख दोगे एज F इंटू आर इक्वल टू आई इंटू अल्फा, अल्फा को लिख दोगे A बाय आर। तो यहाँ से आप F की वैल्यू उठा के यहाँ रख देते हो और सिंप्लीफाई करते हो एक्सेलरेशन के लिए। तो सिंप्लीफाई करने पर मुझे रिजल्ट भी याद हो गया अब तो, g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर लिखते हो, वेयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज mk स्क्वायर, वेयर k इज योर रेडियस ऑफ गायरेशन, राइट। तो ये रिजल्ट आता है वहीं से, पर यूजुअली ये रिजल्ट याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है। आप सिर्फ ये दो इक्वेशंस कैसे हम लिखते हैं वो समझ लो, और उसके बाद में यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चन फ्रॉम रोलिंग मोशन। ओके, कूल। So this was your rolling motion and rotation motion. Majority of the important portion comes till this part, but gravitation भी बहुत important सा chapter है। यहाँ पे जब हम important expression की बात करते हैं तो I personally feel gravitation थोड़ा सा overshadow हो जाता है because of electrostatics, because everything that you study here gets almost covered in the chapter of electrostatics। जैसे जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स लिखते हैं g m1 m2 बाय आर स्क्वायर, तो ये वहाँ जाके कुलम्स लॉ बन जाएगा। सिमिलरली हम इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड डिफाइन करते हैं एज f बाय m, जो कि बन जाता है g कैपिटल m बाय आर स्क्वायर, राइट। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी हम डिफाइन करते हैं एज माइनस g m1 m2 बाय आर, एंड इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, यू कैन सी कि मेरे मुंह से भी बार बार इलेक्ट्रिकल फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टर्म्स ही निकल रहे हैं। इट इज़ दैट ओवर shadowed. So potential is basically potential energy per unit mass, so that becomes minus g capital M by R. So these are the very important expression that we talk about when we are speaking about the chapter of gravitation. Okay, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत सिंपल ही आते हैं। यूजुअली क्वेश्चंस होते हैं इस चैप्टर से फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। इफ आई से द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, तो ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ की जो वैल्यू है g in outside the surface of earth is g capital M by small r square when you are outside the earth's surface. When you are on the surface, which we also say is g naught, is given by g capital M by r square, and g inside is interesting, which I want you people to remember, is g capital M into r by r cube. ओके, और यही जो कैपिटल आर है इस केस में ये नथिंग एल्स बट आर प्लस एच है। व्हाट इज कैपिटल आर? इट इज द रेडियस ऑफ द अर्थ
एंड h इज द हाइट अबाउ द अर्थ सरफेस। तो इन्हीं एक्सप्रेशंस को जब हम यूज करते हैं तो हम उसके वेरिएशंस भी डिफाइन करते हैं। तो g विथ सम हाइट जब लिखते हो तो दैट इज g नॉट 1 माइनस 2h/r, ये आता है। मतलब ये कि जैसे जैसे हम अर्थ की सरफेस से दूर जाते हैं, फॉर हाइट वेरी वेरी लेस देन r, आप ये एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो। अदरवाइज आप क्या लिखोगे, अदरवाइज यू विल हैव टू राइट योर एक्सप्रेशन एज g/m/r प्लस h का स्क्वायर। और अगर r स्क्वायर के टर्म्स कैपिटल g नॉट के टर्म्स में अगर आप लिखना चाहते हो तो यू विल हैव टू राइट इट एज दिस। यही एक्सप्रेशन बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन के बाद ये बनता है, राइट। सिमिलरली अगर हम डेप्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, इफ यू आर गोइंग इनसाइड द अर्थ, then expression is 1 minus d/r, where you have gone certain depth d inside। तो अब आपका जो डिस्टेंस बचा है अर्थ से वो है r minus d। तो आप इसे यूज कर सकते हो when you are solving questions when a tunnel is dug in the earth crust। Okay guys, cool। Moving on to oscillations and waves। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे ये समझना कि हम SHM को विजुअलाइज कर पाते हैं या नहीं। और सबसे ज़्यादा आसान तरीका, द डे आई अंडरस्टूड द फेजर डायग्राम आई कैन से, इज़ व्हेन आई वाज एबल टू अंडरस्टैंड SHM टू द कोर। तो ये हमेशा याद रखना कि जो बॉडी SHM परफॉर्म करती है, मान लो वो बॉडी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे मूव करने वाली है, मीन्स इट इज़ गोइंग टू मूव लाइक दिस और लाइक दिस। तो वो मोशन एक्चुअली can be seen as the shadow of a body moving in a circular path with constant angular velocity। मतलब ऐसा अज्यूम करो कि एक बॉडी है जो सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है विद एन कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और उसने ऑलरेडी एक एंगल थीटा कवर कर लिया है, एंड दैट एंगल थीटा इज नथिंग बट ओमेगा टी, बिकॉज ओमेगा इज कांस्टेंट, इट इज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और इसकी शैडो को हम एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे स्टडी करते हैं, जो कि SHM कर रही है। ओके, तो अगर मान लो जो सर्कुलर पाथ है उसका रेडियस a है और ये है थीटा, और थीटा का वैल्यू ओमेगा टी है, तो x का वैल्यू आ जाता है a cos थीटा, और y का जो वैल्यू है कोऑर्डिनेट का वो आ जाता है a sin थीटा, राइट। तो अब आप चाहो तो SHM को जब स्टडी करना है तो either you can study it as a body's shadow moving, or rather the shadow itself moving on x axis or on y axis। तो जैसे जैसे ये जो बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, it will move from point P to Q to R to S to P। जो शैडो है वो P to O to R to O to P मूव करेगी, means what, this is how the oscillations will keep on happening। or on y axis also you can study that। So all in all we can say that x coordinate, if you are studying, it will be a cos theta and theta is omega t, or it is studied on y axis, so it could be said to be a sin omega t, depending upon whichever sinusoidal function you want to go by। Sinusoidal function is sine or cos, any of these। Okay, so whichever of these you are working with, you can go ahead and accordingly you will solve the questions of SHM। So if you are thinking of SHM equations, after this it becomes very simple। जो if you are say studying on x axis the shadow, then x is nothing but a sin omega t। Okay, if there is any phasor angle involved you can write that also along with it, and if you differentiate it, dx by dt, so that will be the velocity of the moving body which is performing SHM, and that value will come out to be a omega cos omega t, right। and if you differentiate it further, dv by dt अगर हम पता लगाते हैं तो acceleration मिलेगा, which will be minus omega square a sin omega t। and what is a sin omega t from the first part? This tells us a is equal to minus omega square x, probably the most important equation, that's why called as the equation of SHM। okay, उसके अलावा आप v और x के बीच में भी रिलेशन पता लगा सकते हैं। ये तो v और t और x और t, a और t एंड a और x के बीच में रिलेशन है।
v और x के बीच में रिलेशन पता लगाने के लिए आप x की इक्वेशन को ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दो, स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो v जो आता है दैट विल कम आउट टू बी ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. Okay, this is how the relation between v and omega looks like. Okay, now typically SHM से जो रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उसमें हमें बहुत बार केस स्टडीज़ करनी पड़ती हैं. तो ऑल यू हैव टू लुक फॉर इज द नेट रीस्टोरिंग फोर्स एंड यू हैव टू इक्वेट इट एज मास इनटू एक्सेलरेशन एंड मैग्नीट्यूड वाइज दैट वैल्यू शुड बी इक्वल टू m into omega square x because acceleration is a square omega square x, that's the equation of SHM. ओके, और यहाँ से जब आप सिंप्लीफाई करते हो तो आप ओमेगा पता लगाते हो. You basically find the value of omega. If you get the value of omega, you get the value of time period, which is nothing but 2 pi by omega. Like in spring block system, it will always come out to be under root or 2 pi under root of m by k, right guys? So be it the situation of spring block system, be it the situation of a body which is floating on a liquid, be it a liquid filled in U-tube, the oscillation of liquid in U-tube, or any other situation that you might have studied before, any object which is thrown inside earth imaginary tunnel, the oscillation of it, all those ever if you come across a question, this is what you basically try to approach by. You try to write down the net restoring force. पहले तो बॉडी इक्विलिब्रियम पे होगी, फिर उसको डिस्टर्ब करेंगे, एक्स अमाउंट से आप डिस्प्लेस करोगे इक्विलिब्रियम से, तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स m ओमेगा स्क्वायर एक्स हो जाएगा एंड दैट विल बी इक्वल टू ma. सो दैट नेट फोर्स विल बी इक्वेटेड टू m ओमेगा स्क्वायर एक्स. वहाँ से आप ओमेगा निकालोगे और ओमेगा की वैल्यू आप पता लगाते हो तो आपको टाइम पीरियड मिल जाता है. ओके, कूल. सो दैट विल बी द जस्ट ऑफ SHM. व्हेन वी स्पीक अबाउट द वेव, here we speak about waves only as at a mechanical level, means we are only speaking about mechanical waves in this chapter. So waves की जो equation है वो SHM से ही define होती हैं and the equations are a sin omega t plus minus kx depending upon direction. तो अगर particles during wave propagation by direction पे oscillate होते हैं तो wave is said to be moving along x direction with the A being the amplitude which is same as that of the source. Remember कि wave का जो amplitude है और उसकी जो frequency है वो हमेशा source से define होती है, जबकि जो wave की velocity है which is you know omega by v is k, so v is equal to omega by k. तो ये जो velocity आती है wave की जो कि constant होती है in a given medium is dependent on a medium. Remember that amplitude and frequency are dependent on source while velocity of the wave is dependent on the medium. Okay, तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो usually हम कुछ phenomena study करते हैं. One of the phenomena that you study is interference. So whenever you have any of these phenomena to be studied, you basically are talking about multiple waves traveling in the medium. एक से ज़्यादा wave medium में जब travel करती है तो particles confuse हो जाते हैं according to which they are supposed to oscillate, so they modify their own oscillation. तो अगर मान लो एक wave जो है वो given है as a1 sin omega t plus kx and the other one is given to you as a2 sin omega t, इसको भी प्लस माइनस और इसको भी प्लस माइनस लिखता हूँ so that we are talking about very generic case. Okay, if you have a minus sign here, the direction is positive x-axis, and if it is a plus sign here, then it is negative x-axis in which your wave is traveling, right? तो अगर phenomena interference होने वाला है तो interference कब कहलाएगा superposition of the waves? Superposition means overlapping of the waves. उसकी कंडीशन है कि आपका amplitudes अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा important है कि आपकी ओमेगा वैल्यूज जो हैं वो इक्वल होनी चाहिए दोनों वेव्स के लिए. That's the only condition actually. For interference to take place, the two waves, their frequencies must be same. Omega 1 should be equal to omega 2. और फिर आप उसमें according to phasor diagram आप solve करते हो और parallelogram law of vector addition से resultant amplitude as a under root of a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos of phi से उसे पता लगा लेते हो. Okay. And yes, one more condition was there, constant phase difference होना चाहिए उनके बीच में. एक तो
बाय द वे अगर ओमेगा कांस्टेंट होगा तो फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो ही जाएगा. वन ऑफ देम इज हैविंग देयर एम्पलीट्यूड a1 हेयर, से अदर वन इज एम्पलीट्यूड a2 हेयर, तो इनके बीच का जो एंगल है फाई वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा इफ बोथ द वेक्टर्स आर रोटेटिंग विद द सेम एंगुलर वेलोसिटी, राइट. नेक्स्ट इज योर स्टैंडिंग वेव्स और स्टेशनरी वेव्स. सो व्हेन आई स्पीक अबाउट स्टैंडिंग वेव्स, यहाँ कंडीशंस बहुत ज़्यादा होती हैं. एक तो दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड सेम होने चाहिए, उसके अलावा दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, तो फेज ऑब्वियसली कांस्टेंट हो जाएगा. उसके अलावा उनके डायरेक्शंस जस्ट अपोजिट होने चाहिए. सो व्हेनेवर दिस हैपन्स, there is no net transfer of energy that takes place between one point to another in the medium, because these are fundamentally the waves which have same energy overall. Amplitude same है, frequency same है, it is only traveling in opposite direction. तो जितना per unit time energy right side जा रहा है उतना ही per unit time energy left side जा रहा होता है. And during this standing waves formation there are nodes and antinodes being formed. Nodes are the point where there is no energy particle ever have along the vertical direction, so उनका वाइब्रेशन जीरो होता है. जबकि एंटी नोड्स वो पॉइंट्स होते हैं जो सबसे ज़्यादा एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट कर पाते हैं, राइट. एंड देन वी स्पीक अबाउट द फिनोमेना ऑफ बीट्स विच आर यूजुअली स्पोकन विद रिस्पेक्ट टू साउंड वेव्स ओनली. और इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन होती है कि दोनों वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम नहीं होनी चाहिए, और उनका जो बीट फ्रीक्वेंसी हम पता लगाते हैं उसके लिए दोनों का जो डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज है वो लेस देन 14 हर्ट्ज होना चाहिए फॉर अस टू बी एबल टू आइडेंटिफाई दैट. बहुत स्मॉल डिफरेंस होना चाहिए. तो हमें जो साउंड सुनाई देती है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है f1 प्लस f2/2 यानी कि एवरेज फ्रीक्वेंसी, और जो बीट फ्रीक्वेंसी हमें सुनाई देती है वो होती है सिंपली f2 माइनस f1. दोनों की फ्रीक्वेंसीज का जो डिफरेंस होता है that is basically the beat frequency that we hear. Okay, the only other thing that we study in this chapter is the concept of Doppler's effect, जिसमें if there is a relative motion between the source of sound and your observer, अगर इनके बीच में कोई भी relative motion होगा तो जो frequency of sound generate हो रही है if that is f0, तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी जो हमारे ऑब्जर्वर को सुनाई देती है उसका एक सिंपल फॉर्मूला याद रखना है, v प्लस माइनस वी ओ अपॉन v प्लस माइनस वी एस. सिर्फ ये याद रखना है, अपने आप को विजुअलाइज करना है टू बी स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ अ रेलवे स्टेशन, और वहाँ से एक ट्रेन अगर अप्रोच करती है तो व्हेन यू आर स्टैंडिंग यू आर द ऑब्जर्वर एंड सोर्स इज कमिंग क्लोज, सो फ्रीक्वेंसी हर्ड इज मोर, दैट मीन्स श्रिलनेस बढ़ जाती है. तो सिंपली अगर सोर्स पास में आएगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए, तो डिनोमिनेटर को कम होना चाहिए टू गिव यू मोर वैल्यू देन f0. ऐसे ही अगर सोर्स दूर जाएगा तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, तो डिनोमिनेटर बढ़ाने के लिए हम प्लस साइन यूज़ कर लेंगे. सिमिलरली अगर सोर्स मूव करेगा तो अकॉर्डिंगली इफ द सिंपली क्या याद रखना है, अगर रिलेटिव गैप बिटवीन बोथ ऑफ देम इज रिड्यूसिंग तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होनी चाहिए, और अगर रिलेटिव गैप बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर इज इंक्रीजिंग सो द ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी हैज टू बी decreased. Okay guys, keep that in mind. Now speaking about fluid mechanics, the last chapter of mechanics as a unit, यहाँ पे actually speaking there are a lot of things that we study, but I'm going to only talk about things from where you can expect questions from. तो पूरे fluid mechanics में if you have to approach certain things then I can say, एक तो ये याद रखना है कि प्रेशर जो है वो h रो g है, और अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज़ कर रहे हैं तो P0 प्लस h रो g यूज़ करना होता है अकॉर्डिंगली. तो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज़ द केस, इज इट ओपन टू एटमॉस्फेयर और नॉट, तुम प्रेशर का वैल्यू निकाल लेते हो, राइट. उसके अलावा पूरे चैप्टर में जो क्वेश्चंस होते हैं, आई एम ओनली कंसिडरिंग दैट मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस इफ यू विल गो स्कैन एंड फाइंड, यू विल फाइंड दैट क्वेश्चंस कम फ्रॉम द मोशन ऑफ आइडियल फ्लूइड, नॉट फ्रॉम द रियल फ्लूइड. तो आइडियल फ्लूइड के लिए एक तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमेशा ध्यान में रखनी है. इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बोलता है कि टोटल मास पर यूनिट टाइम विच इज एंटरिंग इन अ ट्यूब इज इक्वल टू द टोटल मास पर यूनिट टाइम विच इज एग्जिटिंग. सो दैट इज वाई इट इज a1v1 विच इज इक्वल टू a2v2. ओके, वॉल्यूम फ्लो रेट भी कांस्टेंट हो जाता है. और दूसरी चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए वो है बर्नौलीज
equation or Bernoulli's theorem, which is nothing but law of conservation of energy, which says that pressure plus kinetic energy per unit volume and potential energy per unit volume always remain constant whenever a fluid is traveling from one point to another in a tube. Even if the area of cross section is changing, height is changing, the things will keep on changing, but what will not change is the total amount of energy which is flowing, right? तो इसी का एक छोटा सा एप्लीकेशन समझा देता हूँ इन ऑर्डर टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैपनिंग हियर. तो जैसे अगर कोई टैप है और उस टैप में से यू हैव वाटर विच इज़ फॉलिंग, तो आपने एक बात नोटिस की होगी, जितना टैप से वाटर नीचे फॉल होता जाता है उतना उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है, अगर वो यहाँ पे A1 था तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पे आते आते डिक्रीज हो जाता है, राइट? तो ये हम प्रूव करना चाहते हैं. तो अगर मान लो यहाँ पे वेलोसिटी v1 है तो यहाँ पे वेलोसिटी v2 हो जाएगी आफ्टर फॉलिंग फॉर अ हाइट h, राइट? तो मैं क्या करूँगा, सिंपली एट पॉइंट P एंड एट पॉइंट Q मैं बर्नौलीज इक्वेशन लगा देता हूँ. तो एट पॉइंट P अज्यूमिंग दैट Q पॉइंट जो है वो h इक्वल टू 0 पे है, तो पॉइंट P पे प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाहर से आने वाला, काइनेटिक एनर्जी half rho v1 square assuming that density is not changing when the liquid is falling, and potential energy per unit volume है rho gh for the height h, right? इसी को अगर हम लिखते हैं पोटेंशियल प्लस एज एन ओवरऑल एनर्जी एट Q, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो वहाँ पे भी है, काइनेटिक एनर्जी है हाफ रो v2 स्क्वायर और रो जी एच वाला फैक्टर 0 बिकॉज दैट इज h इक्वल टू 0. तो यू कैन सी दैट यहाँ से P एटमॉस्फेरिक जो है वो मैं कैंसिल कर सकता हूँ और अब मैं रो का वैल्यू भी कैंसिल कर देता हूँ. सो व्हाट डू आई हैव हियर इज हाफ v1 स्क्वायर प्लस जी एच इक्वल टू हाफ v2 स्क्वायर. तो v2 स्क्वायर का वैल्यू आता है v1 स्क्वायर प्लस 2gh और सिंपली v2 हम फाइंड आउट कर पाते हैं एज v1 स्क्वायर प्लस 2gh इन अंडर रूट, राइट गाइज? अब बिटवीन P एंड Q अगर हम अप्लाई करें A1 V1 इक्वल टू A2 V2, तो हमें अगर मान लो A1 और A2 में कंपैरिजन चाहिए तो A1 बाई A2, ऑल आई एम सेइंग कि A1 का वैल्यू A2 से ज़्यादा होगा, वो हो जाना चाहिए V2 बाई V1. एंड फ्रॉम हेयर यू कैन सी दैट फ्रॉम हेयर V2 इज़ ग्रेटर देन V1, क्योंकि V1 में हम कुछ अंडर रूट जो वैल्यू लिखी है V1 स्क्वायर इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस 2gh इज v2 स्क्वायर, तो v2 स्क्वायर में जो वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं उसमें v1 स्क्वायर में मैंने 2gh ऐड किया हुआ है, तो डेफिनेटली v2 इज ग्रेटर देन v1, सो डेफिनेटली दिस रेशियो इज ग्रेटर देन 1 और इट टेल्स यू दैट a1 इज ग्रेटर देन a2, राइट? दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम ओनली टू प्रूव दैट व्हेन यू ड्रॉप समथिंग द लिक्विड, its area of cross section, its overall stream will become thinner and thinner and thinner. Okay, so like that, only on the basis of these two equations, equation of continuity and Bernoulli's equation, trust me, you'll be able to solve n number of questions. Okay, so guys, I hope you found these all topic revision helpful. हमने पूरा मैकेनिक्स उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उन्हें कवर किया है. तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू वॉच दिस इंटायरली. अगर कुछ चीज़ें डाउटफुल हैं तो एकदम स्टार्टिंग से दोबारा से रिविजन के फॉर्म में देख सकते हो. कोई डाउट है तो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो. आई गेट बैक टू यू गाइज. आई कीप ऑन रीडिंग द कमेंट्स सो दैट आई कैन रिस्पॉन्ड टू यू पीपल. ओके, एंड डेफिनेटली नेक्स्ट सैटरडे ऑल्सो आई एम कमिंग बैक. और नेक्स्ट सैटरडे हम लोग मोर प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर ध्यान देंगे. उस टाइम पे हम लोग पॉसिबली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. ओके गाइज, सो आई होप द प्रिपरेशन इज on dot. You guys are all geared up. Okay, so I'm going to see you all very soon. Okay, till then, keep studying, keep enjoying, and stay positive. Okay, so guys, before I end, if you have certain doubts and difficulties, definitely I need to tell you that there is crash course which you can join. Okay, this crash course is happening from 10th of August. Okay,
yeah, I was actually thinking about sharing the information earlier also, but then if you have certain doubts and difficulties which you think in last 10 days maybe हम cover कर सकते हैं, तो I think crash course is the best way to do that. And the easiest way to join is to follow this link, use this code as well, and this crash course, which is actually worth rupees almost 25,000, could be yours for just under 2,000 rupees. Okay guys, so this is the channel Telegram group. If you are interested, you can join. I'm sure 2020 students are already here. The link is available in the description. Okay, cool everyone, awesome. So I hope you guys found this session helpful, and if interested, you can join the crash course as well. And if not, continue watching the videos here. I'll keep on coming back with something which is even more helpful than this. In fact, I'm going to see you guys tomorrow as well in the second half of the day, coming up with something which is helpful for the mental health of yours. Okay, so guys, I'll take your leave now. Till then, take care. Bye bye. Stay motivated. Bye bye.